Hello dear students, this is Ikram from AICC 9 to 12 YouTube channel. Today we are going to study poem number 8 of class 12th English book. The title is My Heaven, composed by Rabindranath Tagore. Firstly, I want to know about the poet Rabindranath Tagore. A gifted Indian poet, Rabindranath Tagore was born in Calcutta on 7th May 1861. He was educated mostly at home and then in England. He was the youngest son of Devendranath Tagore, who was called Maharishi by the people out of love and respect for his saintliness. In his boyhood, Rabindranath was deeply influenced by the spiritual heritage of India. Nature fascinated him. He started composing songs and lyric at a very early age. In 1905, the partition of Bengal drew him to the nationalist movement with the publication of Gitanjali in 1912. His fame spread all over the world, and in 1913 he was awarded the Nobel Prize for Literature. He founded a famous school, Shanti Niketan, which has now become a university named Vishwabharati University. He was a patriot, artist, educationist, social reformer, and philosopher. He died in 1941. His main works include Gitanjali 1913, The Crescent Moon 1917, King of the Dark Chamber 1914, My Reminiscences 1917, Gora and Home and the World 1919, Jan Gan Man. The national song was also given by him in Chittor district in 1919 when he renounced his title knighthood. About the poem. This poem is an extract from the famous work of Tagore, Gitanjali. In this poem, the poet expresses his lofty concept of freedom. He wants freedom in every field of life, social or spiritual. Tagore loved India very much and was a true patriot. In this poem, he expresses his love for India. So he describes what type of country he wants and prays to God likewise. He imagines a country where the people's mind should be free from fear and narrow-mindedness. There should be no distinction of caste, race, or language. He wanted to make his country heaven on earth. यह कविता भारत और भारतवासियों के लिए महासंत रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा प्रार्थना किया गया है ईश्वर से कि किस प्रकार से हमारा देश हो और हमारे देशवासी हों। तो आइए इस प्रार्थना में हम लोग भी सम्मिलित हों। Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear, जहाँ मनुष्य के मन में कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, and the head is held high, तथा हमारा जो सिर हो वो सम्मान से ऊंचा रहे, गर्व से ऊंचा रहे। Where the mind is without fear, जहाँ मनुष्य के मन में कोई भय ना हो, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और हमारा सिर सम्मान से ऊंचा रहे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ शिक्षा मुक्त हो, अर्थात शिक्षा केवल ऊंचे वर्ग के लिए ही न हो बल्कि समान रूप से सबके लिए हो। यहाँ फ्री का अर्थ ये नहीं है कि पैसों से फ्री की बात की गई है, बल्कि वेयर नॉलेज इज़ फ्री यानी सबके लिए शिक्षा हो, ऐसा हमारा देश बने। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, वेयर द वर्ल्ड जहाँ का संसार हैज़ नॉट बीन ब्रोकन तोड़ा न गया हो, बिखेरा न गया हो, इनटू फ्रैगमेंट्स टुकड़ों में, जहाँ का संसार यानी हमारे देश का ऐसा वातावरण हो कि जिसे
टुकड़ों में न तोड़ा गया हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, सकरी घरेलू दीवारों से, यानी सकरी घरेलू दीवारें ना हो, हमारा मन जो है वो छोटा ना हो, हमारी सोच बड़ी हो और हम ऊंची चीज़ों की कामना करें और हम फ्री हों, स्वतंत्र हों, हमारा मस्तिष्क स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर द वर्ड्स, जहाँ शब्द कम आउट, बाहर आएँ, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराई से, यानी सच का बोलबाला हो हमारे देश में, हर कोई सच बोलने पर गर्व महसूस करता हो और सत्यवादी बनना चाहता हो, ऐसा हमारे देश का वातावरण बने। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, वेयर, जहाँ लोग टायरलेस, अथक, स्ट्राइविंग, परिश्रम करें, स्ट्रेच इट्स आर्म, अपने हाथों को फैलाएं, टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की ओर, जहाँ लोग अथक परिश्रम करके अपने हाथों को पूर्णता की ओर ले जाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, जहाँ स्पष्ट तार्किक शक्ति, हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, जो अपना रास्ता कभी न खोए, जिसका रास्ता कभी गायब ना हो, बल्कि हमारी तार्किक शक्ति जो है ये प्रभावी हो जाए। इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, इनटू द ड्रेरी डिजर्ट, रूढ़वादी रेगिस्तान में, ऑफ डेड हैबिट्स, मृत आदतें, यानी मृत आदतों के कारण जो हमारी रूढ़वादिता है वो हमारी तार्किक शक्ति को समाप्त न कर पाए, इसकी कामना की है महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय थी इनटू एवर वाइडनिंग, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, जहाँ मेरे देशवासियों का दिमाग आगे की ओर बढ़ रहा हो, लेड फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ रहा हो, बाय थी, आपकी कृपा से, आपकी मदद से, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, तथा गतिशील, सदा गतिशील रहने वाले विचारों तथा कार्यों के माध्यम से, इनटू दैट हीवन, और ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, इनटू दैट हीवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माय फादर, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देश को जागृत कर दे, ऐसे मेरे देश को जागृत कर दे। यहाँ कवि ने ये कहा है कि जो स्वतंत्रता प्राप्त होने वाली है, यानी 1941 में डेथ हो गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो जो स्वतंत्रता मिलनी है उस स्वतंत्रता को जो हम प्राप्त करें वो स्वर्ग रूपी स्वतंत्रता हमारे कंट्री को जगा दे, हमारे देश को जगा दे। Thank you very much for listening this poem. Thank you so much.